वेलकम। टुडे वी हैव गौतम सर फ्रॉम ICM इंस्टीट्यूट। आप जैसे क्लास में बच्चों के बहुत यूनिक नाम रखते हो, जैसे मेरे बैच में आपने रखा है आलू पूड़ी, मेरी फ्रेंड का नाम और मेरा नाम रख दिया मन्नत जन्नत। आप ये कहाँ से ये सोचते हो इतने यूनिक नाम? अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं बच्चों को प्यार से नाम देता हूँ ना, तो आप नोटिस करना, कई साल बाद बच्चा जब मुझे मिलता है तो बच्चा मुझे ना अपने असली नाम से इंट्रोडक्शन नहीं देगा। बच्चा मुझे बोलेगा, सर आपको याद है कि आपने मेरा ये नाम रखा था। सारा जीवन भर ना वो सारा साथ जीवन, चलता यस, है। वो नाम उसके साथ चलता है। What is this Vijaypath batch newly introduced by ICM? Mannat, see, Vijaypath batch is a very crucial batch for plus 2 students. It is newly introduced by ICM for the benefits of plus 1 and plus 2 students. What are the advantages of joining this batch? See, as I said you, advantages, USP or benefits. Number 1, accounts, eco, BST and specifically English. Yes, English will also be taught. Normally English is a very ignored subject by students. अगर आप देखोगे सारा साल बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते, but English is a compulsory subject. So ICM is offering all the 4 subjects together under one roof under this particular batch. Sir, could you please inform us about the faculty in charge? Normally दूसरे इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही फैकल्टी पढ़ा रहा है। ICM ने 27 years का एक ट्रस्ट बिल्डअप करा है, उसको हम कभी ब्रेक नहीं करेंगे। All the subjects are taught by different faculties, expertise in their particular field. Economics की different faculty, BST, English, everybody has a different faculty. Accounts, I'm teaching basically from last 27 years. What is the fee structure? Bacha, see, the fee structure is 50,000 rupees per annum for all the 4 subjects. That's it. 50,000 rupees per annum for all the 4 subjects. Only 50,000 per annum for 4 subjects? That is like 4,000 per month. Yes, bacha, you heard it right. 4,000 rupees per month approximately we are charging. That is 50,000 per annum for all the 4 subjects, because हमारा मोटिव क्या है? क्वालिटी एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं लास्ट 27 ईयर्स से, हमारे रिजल्ट्स बताते हैं, और साथ में मिनिमम कॉस्ट। द कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड एंड द क्वालिटी शुड बी मैक्सिमाइज्ड। दैट्स अ बेसिक मोटिव। Is there any special scholarship available for the students? बच्चा देखो, scholarship is actually available. ICM will be conducting a small scholarship test, and I believe that after teaching for last 27 years, it's time to pay back to society. इसमें सिर्फ 2 क्वालिटी चाहिए मुझे बच्चे में। स्टूडेंट डिजर्विंग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और साथ ही साथ हार्ड वर्किंग के साथ वो नीडी होना चाहिए। And if he passed my scholarship test, the scholarship up to 100% is available for all the classes at my institute. I'm not talking about only for plus 1, plus 2. I'm talking about CA, I'm talking about CS, I'm talking about CMA. Scholarship हर एक particular course के लिए available है। The only thing is, I require कि student में dedication हो, और student should be actually capable of working hard. What advice do you give to students to effectively, manage their time for the 12th boards? See, plus 2 boards को जब हम लोग तैयार करते हैं ना, basically क्या है कि there are only 3 main points which student has to follow. 1, classes में regular रहना है, ठीक है। Number 2, regular test series देनी है। हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है कि after every chapter we are conducting a test. After every chapter. और उस पे वो टेस्ट सीरीज को मिस नहीं करना, किसी भी टेस्ट को मिस नहीं करना। नंबर 3, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सारे के सारे रेगुलर बेस पे इसको रिवाइज करना है। वो सारे के सारे हमारे क्लास में प्रैक्टिस किए जाएंगे। हमारे जितनी भी फैकल्टीज हैं, इट्स फॉर अकाउंट्स, फॉर इको, फॉर BST, फॉर इंग्लिश ऑल्सो, ये सारे पेपर्स जो हैं क्लास में करवाए जाते हैं। What are the career options available for the students after 12th for professional courses? See, there are a lot of डिफरेंट करियर ऑप्शंस। बच्चा प्रोफेशनल लेवल पे भी जा सकता है, बच्चा ग्रेजुएशन भी कर सकता है। द बेस्ट पार्ट इज बच्चा की CA, CS, एवरीबडी हैज हर्ड इट। CA कर सकता है बच्चा, CS कर सकता है, ठीक है। नाउ देयर इज एक्चुअली वन मोर कोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज CMA। CMA इज बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब सपोज कर लो कि बच्चा CA से डरता है, सपोज कर लो स्टूडेंट है, ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ डूइंग CA। व्हाट ही कैन डू इज ही कैन शिफ्ट टू CMA बेसिकली। अब CMA का आपको मैं एक बेस्ट एडवांटेज बताता हूँ। एक तो भी इसका जो पैकेज है वो ऑलमोस्ट CA के इक्विवेलेंट है,
Number one. Number two, course is very easy. Passing percentage is very high. Cost and management accountant. And the best part is, जैसे आप CA में फाउंडेशन लेते हैं, all papers are MCQ. एंड सारे के सारे पेपर्स MCQ होने के साथ साथ याद रखिए एक ही दिन में एग्जाम होगा. मतलब इवन अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, एवरीथिंग इज MCQ बेस्ड. सो लाइक मतलब स्टूडेंट हैज द ग्रेट एडवांटेज. इस होता है कि बच्चा सपोज कर लो अगर एक अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर करता है तो ही गेट्स मोटिवेटेड, राइट? सो दैट मोटिवेशन, दैट एंथुसियाज्म शुड बी देयर अमंग द चाइल्ड. सो इफ अ स्टूडेंट फील्स कि भाई हमने प्रोफेशनल कोर्स करना है, हमें CA या CS डिफिकल्ट लगता है, स्टूडेंट कैन इजीली ऑप्ट फॉर CA में. That is also a tremendous course with a more passing percentage. अच्छा सर, so as you said कि आपको 27 years हो गए हैं पढ़ाते हुए. So you know what changes have you noticed? What evolution has come? So please tell us about that. See, also. first of all, number one thing, मैं हमेशा सारे बच्चों को एक एडवाइस करता हूँ. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, they have become teachers in different colleges and schools and all that. I will always advise them, be original. हमेशा वो करो जो आपके अंदर से आता है, राइट? एंड ऑलवेज गो विद टेक्नोलॉजी. हम लोग जैसे AI आ रहा है, जैसे आप बात करते हो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आ रहा है, हमारी जॉब खराब करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. याद रखिएगा, अगर हम सपोज कर लीजिए हम जैसे AI है, अगर हम उसको टीचिंग में लेकर आए, टेक्नोलॉजी को यूज करें, तो इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. Like the software through which I'm teaching, it's one of the most advanced softwares which is actually used. I can very much assure you, मन्नत, कि भाई अमृतसर में इस एडवांस टेक्नोलॉजी को कोई यूज नहीं कर रहा. बिकॉज नॉर्मली आज भी टीचर्स का वही है, भाई एक बोर्ड लिया, पढ़ाया, या एक हैंड रिटन वाला प्रोजेक्टर ले लिया, ओल्ड मेथड ऑफ राइटिंग एंड राइटिंग. सो यू शुड बी मेकिंग क्लासेस फन. ठीक है, स्टूडेंट शुड कम टू यू एंड दे शुड लर्न विद फन. दैट्स अ बेसिक थिंग. और लर्निंग जो होती है, अगर वो आप बच्चों को एंजॉय करवा दो, एंटरटेन करवा दो उसको, और बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, मोनोटोनस ना लगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उसको पढ़ना शुरू कर देगा. दैट्स अ बेसिक फंडा जो मैंने हमेशा फॉलो करा है. तो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 98 टिल दिस पर्टिकुलर डेट 2025, मैंने हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी को या अपनी टीचिंग टेक्निक्स को हमेशा इन्वेंट और इनोवेट करने की कोशिश करी है. Really brilliant. आजकल बच्चे जैसे हैं वो ना नाइट आउल्स बन चुके हैं, वो आधी आधी रात तक पढ़ते हैं. Exactly. तो अब आधी रात को अगर उनको कोई डाउट आता है तो वो कैसे पूछेंगे? मतलब they cannot call up the teachers आधी रात को. So you know what facility you have for that? बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में सीखा है. As you know, जनरेशन इज चेंजिंग, ठीक है, और जनरेशन जो है वो सारे के सारे रात को पढ़ना चाहते हैं. So what we have developed is कि around in 2019 before COVID, बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद करा था, मैंने 2019 में अपनी ICM ऐप बनाई थी. Now what I'm doing is कि the technology which I'm using, it's very advanced. My lectures which I'm recording, it's a very advanced level. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जो लेक्चर्स होते हैं हम उसमें सारे के सारे रिकॉर्ड करके बच्चों को ऐप में डाल देते हैं. अब अगर सपोज कर लीजिए रात को किसी बच्चे को डाउट आ रहा है, तो स्टूडेंट obviously he or she hesitates in asking a teacher. रात को suppose 2 बजे डाउट आ गया तो obviously वो टीचर को हेजिटेट करेगा. So what he or she can do is कि वो अपनी ऐप पे जाए, लेक्चर्स ओपन करे, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं सारा का सारा लेक्चर एज इट इज रिकॉर्डेड होके उसमें ICM ऐप पे चला जाता है विद द सेम मोटिव, सारा का सारा. अब उसमें बेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि बच्चा इमीडिएटली अपना वहाँ पर जो है ऐप खोले, कोई टॉपिक रिवाइज करना है, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, उसको इमीडिएटली रिवाइज कर सकता है. So that's the best benefit of ICM app which we are giving it to students from last more than 6 years basically. Yes, it definitely looks very helpful for the students. Yes beta, because students ऐसे भी हैं. Now I'll tell you one more thing about it. Students ऐसे भी हैं जो basically center हमारे पास नहीं आते. They are actually staying very far away, या उनको conveyance की problem है and all that. तो अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स को अगर कन्वेंस की प्रॉब्लम है तो व्हाट वी आर गिविंग इज कि हमारे ICM ऐप के थ्रू वी आर गिविंग लाइव क्लासेस. उसमें 2-वे इंटरैक्टिव सिस्टम होता है. ऐसा नहीं कि जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस थी 2020 में जब कोविड आया था तो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी. उसके बाद बच्चों के दिमाग में ना ऑनलाइन वर्ड से थोड़ी घबराहट सी पैदा हो गई. बट ये घबराहट बेसिकली हमने दूर करी. जो हमारा सिस्टम है दैट एज आई टोल्ड यू कि आई लव प्लेइंग विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, तो वो जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली प्रेजेंटली वो बहुत ही एडवांस वर्जन है. 2-वे इंटरैक्टिव सिस्टम है बच्चों के साथ. बच्चे हमसे क्वेश्चन उसी टाइम पूछ सकते हैं,
हम बच्चों को देख सकते हैं, हमारे पास एक ऑटोमेटिकली पैरेलल एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें बच्चों को मैं व्यू कर सकता हूँ, एंड इन माय क्लास देयर इज अ बेसिक रूल, यू कैन नॉट स्विच ऑफ द कैमरा. Yes. If you can switch off, if you're switching off the camera, you're out of the class. So that's a basic rule. So इससे क्या हो रहा है कि बच्चा हमसे इमीडिएटली डाउट पूछ लेता है, बच्चा दूर बैठा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अगर रात को कोई डाउट आ रहा है, उसने ICM ऐप खोली, ऐप के अंदर आराम से उसने क्वेश्चन देख लिया. अब जैसे मान लीजिए बहुत तेज बारिश है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो अब बारिश है या कुछ भी है, वी विल नॉट स्टॉप द क्लास. ठीक है, अब सपोज आप ही हो, ऑब्वियसली पेरेंट्स विल नॉट अलाउ यू टू कम इन एक्टिव एंड ऑल दैट, राइट. ठीक है, तो बच्चों को ऑप्शन दिया हो, कोई बात नहीं, नहीं आ सकते, कोई टेंशन नहीं है, एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लास लगाओ, लाइव इंटरैक्टिव क्लास लगाओ, कोई डाउट है मुझसे इमीडिएटली पूछो. So they can remotely connect to you. Yes. So That's that a good thing, yeah. connection between them is very necessary. See, basically, Manat, I've always believed, as you know me very well, कि भाई मेरे लिए स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरे बच्चे हैं, राइट, दे आर लाइक चिल्ड्रन टू मी बेसिकली. तो वो हम लोग क्या स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप हमारा है नहीं. वी आर आइदर फ्रेंड्स और वी आर आइदर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. दैट्स इट. वी हमारा बेसिक फंडा है. तो वो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, राइट. इसी वजह से फ्रॉम लास्ट 27 years से वी आर सर्वाइविंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस. जैसे आप मतलब मैं ही 3 years से अब यहाँ स्टडी कर रही हूँ, तो आप जैसे हमारी 12th में क्लासेस लेते थे, स्पेशल इवनिंग क्लासेस होती थी, संडे मॉर्निंग क्लासेस, तो क्या वो सब विजयपथ बैच में भी वैसे ही होगा? डेफिनेटली बेटा, देखो एक सिंपल सा फंडा है, विजयपथ बैच इज नॉट अ वेरी डिफरेंट बैच. जैसे एक रेगुलर क्लास हमारी चलती थी वो चलती रहेगी, और उल्टा विजयपथ बैच का हमारा इंट्रोडक्शन करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो बेचारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ वो कभी एक जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन्स छोड़ने के लिए. पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हैसल है, बहुत मुश्किल वाला काम होता था. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि जितनी भी एक्सपर्टाइज फैकल्टीज़ हैं उनको अपने इंस्टीट्यूट पे बुला लिया कि भाई बच्चे को इधर उधर ना जाना पड़े. ठीक है, मोरओवर कॉस्ट को कट डाउन करा ताकि पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए कॉस्ट का. अब ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं. अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बच्चों का भी बेनिफिट है कि भाई बच्चे जो हैं वो एक जगह पे सब कुछ पढ़ रहे हैं. मोरओवर और जो हमारी जो स्पेशल क्लासेस लगती हैं, चाहे वो संडे लगे चाहे वो सैटरडे लगे, ऑल द क्लासेस विल बी कंटिन्यूड फॉर एवर, ऑलवेज. ओके. जैसे हमारी टीचर्स डे सेलिब्रेशन होती है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, ई क्लासेस, वो सब आप कैसे मैनेज कर लेते हो? मतलब फन भी, पढ़ाई भी, सारा कुछ हैंड इन हैंड कैसे ले जाते हो आप? सी बेटा, एक सिंपल सा फंडा है लाइफ का, जब तक आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं ना कर रहे हो तो आप उसको ना करना पसंद नहीं करोगे. ठीक है, सी हम कहते हैं कि हम किसी प्रोफेशन में आ गए, सो प्रोफेशन को एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे स्टूडेंट्स बेसिकली मेरे लिए स्टूडेंट्स नहीं है, दे आर लाइक माई चिल्ड्रन, दे आर लाइक माई सन एंड डॉटर्स, राइट. सो वो मैं उनको हमेशा ही मान के चलता हूँ. तो लाइक आई गेट पैली विद माई चिल्ड्रन, आई गेट पैली विद माई स्टूडेंट्स ओनली. So I have actually still date from last 27 years, I still enjoy with my students basically. I take them out for trips, I play with them also, I used to play singing also, I used to play cricket with them also, right? So मतलब everything is there. So the point is कि we are like a family. ठीक है, अब जैसे फैमिली में सब कुछ होता है, हम लोग लाइक एक फैमिली की तरह बन जाते हैं, एंड ऑब्वियसली साथ साथ उनको पढ़ाना भी है. जैसे पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को पढ़ाना भी है और उनको ट्रिप्स पे भी लेके जाना, उनको घुमाना भी है. सो वी आर एक्चुअली, आई बिलीव इन दैट ओनली. या ऐसे मोनोटनी भी ब्रेक हो जाती है एंड स्टूडेंट टीचर बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है. But moreover, I am also very clear, I'm very strict also regarding studies. अगर पढ़ाई को लेकर, हाँ, बिकॉज पढ़ाई हमारा प्रेफरेंस रहता है, जो स्टडीज है हमारा प्रेफरेंस है. ये नहीं कि हम सारा दिन गेम ही खिलाई जा रहे हैं बच्चों को, इट्स नॉट लाइक दैट. हमारा पढ़ाई भी एक बेसिक हमारा प्रेफरेंस रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा प्रेफरेंस है, अगर वो पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ रहेंगी तो बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा, राइट. सो बेसिकली क्या, बच्चे को मार्क्स भी चाहिए, बच्चे को डिग्रीज भी चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे को पेरेंट्स धक्का मार के इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं. बच्चा खुद अपने दिल से आए मेरे पास. द स्टूडेंट शुड कम बाय हिज हार्ट कि भाई मेरे को जाना है, सुबह हो गई, मुझे जाना है. सो मेरे पास ऐसी ईगरनेस होनी चाहिए अंदर की. दैट ईगरनेस, दैट एंथुसियाज्म शुड बी देयर कि मुझे आज ICM जाना है. सो टिल दैट आई एम ट्राइंग टू सस्टेन इट बाय द गॉड्स ग्रेस. अब देखो कब तक उसको सस्टेन करते हैं. अच्छा सर, बच्चों का ना मतलब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, जैसे मेरे बैच में भी पढ़ते थे बच्चे,
वो कुछ शाय से होते हैं, मतलब यू नो दे डोंट कम अप इन द क्लास एंड ऐसे हैंड रेज करके यू नो वो डाउट्स I नहीं पूछ agree. पाते, यू नो दे गेट वेरी शाय अबाउट इट। तो आप उनके साथ कैसे वो इंटरैक्ट करते हो फिर? देखो बच्चा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग कंफर्टेबल विद स्टूडेंट्स, वी शुड एक्चुअली मेक अ कंफर्ट जोन। अब मैं टीचर हूँ, हम टीचर के एक लेवल पे भी मेंटेन रहते हैं, बट द पॉइंट इज कि हम बच्चों को ना डराते धमकाते नहीं, जैसे होता ना कि बच्चे को हम डरा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। द पॉइंट इज कि एक कंफर्ट जोन बच्चे के साथ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो कंफर्ट जोन नहीं आएगा तो बच्चा हमसे पूछेगा नहीं। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में एक बात बोली, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अ टीचर इज अ गुड टीचर इफ ही इज अ गुड फ्रेंड ऑल्सो, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज अगर बच्चे को भी प्रॉब्लम है, अब अगर आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है, दे कम एंड डिस्कस विद मी, सो आई डू रिप्लाई देम बैक, बिकॉज अगर कल को मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे पास आ रही है, दे आर डिस्कसिंग बिकॉज दे कंसिडर मी एज बाय द पेरेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स कंसिडर मी एज बाय पेरेंट्स बेसिकली, सो आई ट्राई टू हेल्प देम आउट इन ईच एंड एवरी मोड, so that comfort level is there and will always be there. That's it. Yeah, that's a good thing, क्योंकि बच्चे like they hesitate a lot. Yes, they actually hesitate a lot because उनको होता है when they are studying in a batch of 20-30 students and all that, उनको पूछने में शर्म आती, तो वो एक क्लास में comfort level बनाना पड़ता है, इसलिए I keep on talking to each and every one. अगर आपको याद होगा जब आप भी पढ़ते हो, तो I have a habit of asking each and every student. Yeah, name wise कि हाँ भाई ये क्लियर हो गया तुम्हें. So in that case, स्टूडेंट को थोड़ा पर्सनल टच फील होता है, and that personal touch should always be there, I believe. Yeah. Because right. student has a very tender heart. You can understand, एक बहुत नाजुक सा बेचारे का बच्चे का दिल होता है, so उसको भी मैच्योर होने में टाइम लगता है, right? So सिंपल सा फंडा बेटा लाइफ का कि जब तक बच्चा अच्छे से स्कोर ना कर ले उसका हाथ नहीं छोड़ना. That is why I'm telling you, again I'm telling you, कि being a teacher it is easy, but being a parent and a teacher it is actually difficult. Yes, and you manage both very well. I try my level best to manage both. No, I've seen it, you do it. Yes. मजा आया आज, जैसे क्लास में आप हमसे क्वेश्चन पूछते हो और हम आंसर करते हैं ना, आज तो रिवर्स रोल्स था, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ एंड यू आर आंसरिंग. देखो बच्चा, this is all part and parcel. I feel like you are my teacher today and I'm your student. So whatever you are asking me, I'm replying it from my heart. Simple सा फंडा है. So बच्चा, ये चीज़ें लाइफ में चलती रहती है, and I will always love to see my students overgrowing me. Overgrowing that means कल को आप 10 साल बाद मेरे पास आ रहे हो कि सर आज मैं इस लेवल पे हूँ, और वो जो सक्सेस का लेवल होता है ना, जितनी आपके पेरेंट्स को खुशी होगी उसके इक्वलेंट ही खुशी है, उससे शायद ज़्यादा मुझे होगी, बिकॉज जो एक जर्नी होती है, बिकॉज पेरेंट्स ने आपको हमारे पास छोड़ दिया, उसके बाद हमने साथ मिलके पढ़ाई करी, हमने हर प्रोसेस को साथ करा, एंड मोर ओवर आई टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मन्नत, कि हम जितना टाइम फैमिली के साथ नहीं स्पेंड करते, हम उतने ज़्यादा टाइम यहाँ पर इंस्टीट्यूट पे स्पेंड करते हैं. Yeah, like Right? I'm spending 9 hours a day. That's it. Yeah. तो हम इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, और आई एम स्पेंडिंग अराउंड 14 hours a day आउट माय इंस्टीट्यूट. सो मतलब हमारा जो टाइम होता है फैमिली के साथ कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है. So this place is like a temple for me. You can understand, this place is like a temple for me. So basically what I want कि ये चीज़ें लाइफ में चलती रहे, and thanks to you for giving me this opportunity of answering your questions, ma'am. Thank you so much and God bless you. ICM has sustained for past 27 years and the goodwill it has created in the holy city of Amritsar. As they provide us with special batches like the Vijaypath batch, they believe in creating good student-teacher bonds, and they also believe in making education fun. Thank you.